A very good evening and Jai Hind to all of you. My name is Navjot Singh and I am a former officer of Intelligence Bureau. And philosophy is a subject that has been very close to my heart. So basically, my idea here is, as many of the aspirants, they have been telling me to start a series for the philosophy optional. So this is my endeavor in that direction. So let's this is an introductory video. इसमें हम कोशिश करेंगे ये चीज़ें समझने की कि philosophy as an optional, how it is important, what are the dynamics जो इस option में involved हैं. So without much ado, let's move on and start today's discussion. So see, what is philosophy? So philosophy, the question what is philosophy has intrigued scholars across the world. So quite literally if you talk, philosophy means the love of wisdom. It is literally the love of wisdom. If we take it in a more broader sense, so it is an activity people undertake when they seek to understand the fundamental truths about themselves, the world in which they live, and their relationships to the world and to each other. So, what is the idea here? So, they try to understand number one, the fundamental truths. The fundamental truths about what? About themselves. First, about themselves, then, about the world in which they live in, and thirdly, the relationship between the two. So, this is the basic existential questions, the basic questions of a philosophy. What is philosophy? So one aims to understand oneself, the world in which one lives, and the relationship that exists with each other and the world. So if we go further, philosophy has certain subsections. If we have to study philosophy, there are certain categorizations. At the core of it, we have metaphysics. So, metaphysics, at the core, it is the study of the nature of reality. So, it talks of the nature of reality, that is metaphysics. नेचर ऑफ रियलिटी की बात करते हैं हम मेटाफिजिक्स में, जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट इट इज़ लाइक, और किस तरह से दुनिया ऑर्गेनाइज्ड है, वो सब चीज़ें. तो फिजिक्स के जो फिलोसोफर्स हैं उनके सवाल क्या हैं? दे टॉक अबाउट इज़ देयर गॉड, सच क्या है, इंसान क्या है, व्हाट इज़ अ पर्सन, व्हाट मेक्स द पर्सन सेम थ्रू टाइम, स्पेस एंड टाइम, इज़ द वर्ल्ड स्ट्रिक्टली कंपोज्ड ऑफ मैटर. ये वही सवाल हैं विच इंट्रीग ऑल ऑफ अस. ये हम सबको जो सवाल बचपन से हम जो सोचते रहे हैं, जो हमें इंट्रीग करते रहे, यही सवाल मेटाफिजिक्स के सवाल हैं. डू पीपल हैव माइंड्स? इफ सो, हाउ इज माइंड रिलेटेड टू बॉडी? डू पीपल हैव फ्री विल? what is it that one event is connected to the other? We talk about causation. ओके, कॉजेशन की बात करते हैं. तो बेसिकली मेटाफिजिक्स में वो सारे जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है. गॉड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, करता है तो कैसे? गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर इविल क्यों है? अगर गॉड गुड है और पावरफुल है तो फिर इविल कैसे हो सकता है? इस तरह के सवाल. इंसान क्या है, सच क्या है, टाइम है कि नहीं है, टाइम था, कब नहीं था. ये सारे सवाल जो हमें इंट्रीग करते आए हैं, ये सारे सवाल मेटाफिजिक्स के डोमेन में आते हैं. दे कम इन द डोमेन ऑफ मेटाफिजिक्स. ओके, अगर हम इसके बाद चले, जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, एपिस्टेमोलॉजी, इसका सेकंड एस्पेक्ट आता है एपिस्टेमोलॉजी. इसको हम थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज द थ्योरी ऑफ नॉलेज. ठीक है. इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद व्हाट वी कैन नो अबाउट द वर्ल्ड. ये वो है कि क्या हम जान सकते हैं इस दुनिया के बारे में. what is possible to know about the world? What is possible to know about the world? तो ये आपकी एपिस्टेमोलॉजी है. तो इसके सवाल कैसे होंगे? एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस हमारे क्या हैं? व्हाट इज़ नॉलेज? डू वी नो एनीथिंग एट ऑल? जो हम जानते हैं वो क्या सच है? हाउ डू वी नो व्हाट वी नो? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज? कैन वी बी जस्टिफाइड इन क्लेमिंग टू नो सर्टन थिंग्स? तो ये सारे नॉलेज से रिलेटेड हैं. इधर हमने जब मेटाफिजिक्स में बात की, ये हम नेचर ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. हेयर वी आर targeting to know, aiming to know the nature of reality. Here we are studying the theory of knowledge.
the formation of knowledge. That is our idea here. And the third aspect of philosophy is ethics. What is ethics? So the study of ethics often concerns what we ought to do. हमें क्या करना चाहिए and what it would be best to do. ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट है करने के लिए. इन स्ट्रगलिंग विद दिस इशू लार्जर क्वेश्चंस आते हैं. कैसे, क्या क्या सवाल है. सो द एथिक्स के क्या सवाल है. व्हाट इज़ गुड, ठीक है, व्हाट मेक्स एक्शंस गुड और बैड, ठीक है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट मेक्स एक्शंस राइट, इज़ मोरालिटी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, हाउ शुड आई ट्रीट अदर्स. ये जो सारे सवाल है ना मोरालिटी के, एथिक्स के, गुड क्या है, what is good, what is bad, how we should behave with others, what should be our perspective towards the world, the theory of karma, the idea of human free will, all these things they come in ethics. So ethics they vary from culture to culture, they are code of way. इसमें क्या है कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट होगा हमारे लिए करके. सो ये बेसिकली हमने जो देखा कैटेगराइजेशन कि आपका मेटाफिजिक्स क्या है, आपकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, और एथिक्स जो आपकी मोरालिटी है, आपके जो इंटरनल जो क्वेश्चंस हैं आपके अंदर की हमें क्या करना चाहिए. फॉर एग्जांपल इन अ सर्टन सिचुएशन हमें पता है कि रेड लाइट है लेकिन कोई देख नहीं रहा है तो वी आर क्रॉसिंग द रोड. सो कहते हैं ना लॉ में क्या होता है, इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ इट इज़ अ क्राइम. लॉ की दुनिया में इट इज़ अ क्राइम टू वायलेट अ लॉ. एथिक्स की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ एथिकल क्राइम टू थिंक ऑफ ब्रेकिंग द लॉ. द की वर्ड हेयर इज थिंक, टू थिंक ऑफ ब्रेकिंग the law. ठीक है, so that is the idea. Here you are violating the law. Here you are thinking of violating the law. So that is the difference between ethics and our legal jurisprudence. ठीक है, wonderful. Now moving on. Now, why we have to study philosophy? Like, how do we know what we know? What is truth, as we discussed? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से that is why they had explained about what is philosophy in the graduate program. How are scientific claims justified? Are we naturally good or evil? Are we responsible for our actions? How do human mind and body interact? तो mind body interaction ये तो एक मेजर क्वेश्चन है फिलोसफी में. माइंड बॉडी इंटरेक्शन की हम आगे पढ़ने वाले हैं. माइंड बॉडी इंटरेक्शन इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन. फिर डू पीपल हैव फ्री विल, जैसे हमने पहले बात की. जस्टिस क्या है. सो फिलॉसफी इन कॉन्सेप्ट्स को एम्ब्रेस करके आगे समझती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं, डील विद द नेचर ऑफ ट्रुथ, जस्टिस, वैल्यू, नॉलेज. तो ये वाले कॉन्सेप्ट क्या हैं, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब और कौन से कॉन्सेप्ट हैं. फिलॉसफी एग्जामिन्स एफर्ट्स ऑफ पास्ट थिंकर्स and cultivates the capacity to reason about our own thinking. ठीक है, अब क्या encourage करता है, clarity of thought. Philosophy encourages clarity of thought and careful analysis of arguments. ठीक है, so basically what we're trying to do here is we are trying to analyze a variety of concepts to arrive at to embrace जो difficult existential questions हैं उनको हम embrace करें, उनके थ्रू investigate करके एक better understanding develop करें. So that is the essence. So philosophy is something that is going to make you more wise, more refined as a person. The study of philosophy makes you more refined as a person. And it is, I think, सबको philosophy एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ. ठीक है, why philosophy. अब अगर हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में फ़िलासफ़ी ऑप्शनल की रेलेवेंस क्या है. व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ फिलोसफी ऑप्शन इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ठीक है, पहला तो देखिए, अब आप कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. ये जो आइडिया है कि ऑप्शनल स्कोरिंग होना चाहिए या मतलब बाकी सब जो फैड्स चल रहे हैं मार्केट में वो मत फॉलो कीजिए. सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज आपको ये 2 से 3 साल पढ़ना पड़ सकता है सब्जेक्ट. बिकॉज इफ़
इवन इफ़ यू आर क्लियरिंग इन द फर्स्ट एग्जाम तो आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स तक भी आपको पढ़ना पड़ेगा. सो बेसिकली यू शुड चूज अ सब्जेक्ट विच यू हैव एन गुड इंटरेस्ट इन, सो दैट इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. सेकेंडली, इंटरेस्ट के बाद गाइडेंस अवेलेबल होनी चाहिए कि आपको अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो कोचिंग की अवेलेबिलिटी, ठीक है, या फिर बुक्स जैसे इजी रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हैं कि नहीं, और कुछ जो स्टडी मटेरियल जो रिसर्च पेपर्स हैं कुछ वो भी अवेलेबल हैं. तो बेसिकली गाइडेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. और दूसरा ओवरलैप, जैसे फॉर एग्जांपल कितना ओवरलैप है बाकी सब्जेक्ट से. ऑल्दो ये फैक्टर सेकेंडरी होना चाहिए, पहले 3 फैक्टर को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दीजिए, इंटरेस्ट को सबसे पहले, फिर गाइडेंस और रिसोर्सेज, और ओवरलैप अगर बाकी जीएस के कंपोनेंट्स के साथ होगा तो वो आपको हेल्प करेगा. तो आगे हम देखेंगे किस तरह से इसका जीएस में ओवरलैप है. तो फिलॉसफी के एडवांटेजेस सबसे ज़्यादा क्या है. सबसे ज़्यादा देखो, ये तो आप 2 से 3 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं. अगर आप रेगुलर 4 से 5 घंटे रोज़ इसको देते हैं तो 2-3 महीने में यू विल बी ईजिली एबल टू कवर दैट. दूसरा, इसका सिलेबस बहुत कंसाइज है, इट इज़ अ वेरी कंसाइज सिलेबस, ठीक है. और नोट मेकिंग एक आसान बन जाती है, सिलेबस बहुत जब छोटा है तो. और दूसरा PYQ है, जो उसके PYQs ऑफन रिपीटेड होते हैं. तो अगर आपने नोट्स बना लिए एक बार अच्छे से, व्हेन यू मेक नोट्स, तो वो नोट्स में आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं. अब इसके अलावा देखिए कि करंट अफेयर्स नहीं है, जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो फिलोसफर दे चुके हैं. अब एरिस्टोटल ने जो कहा है दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. तो इसमें करंट अफेयर्स का कंपोनेंट बहुत कम है. तो आप अगर अपना पढ़ाई करके एक सिर्फ सोशो पॉलिटिकल में आपका थोड़ा सा एक रहेगा एक कंपोनेंट, बाकी मोर और लेस इसका स्टैटिक सिलेबस है. आप मल्टीपल रिविजन्स करें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. दूसरा, फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, आपकी सोचने की क्षमता और आपकी कॉन्टेम्पलेट कर पाने की क्षमता को एक गुड अच्छे इस्तेमाल में आप इसमें ला सकते हैं. तो फिलॉसफी आपको एक एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी एक सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. और ओवरऑल आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, एक फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट होता है एग्जिस्टेंशलिज्म. उसमें कहते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ राफ्ट इन द ओपन सी, इज़ लाइक अ राफ्ट इन द ओपन सी, ठीक है. तो इसमें आप पढ़ेंगे किस तरह से जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पहले आता है, एसेंस बाद में आता है. तो किस तरह से उन्होंने बताया कि जो मंडेन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, बोर्डम है, आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो क्यों होता है. तो वो सारा हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक मीनिंग भी लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपका डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, आजकल आप देख रहे हैं कि एसेज आपके फ़िलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं. पहले तो एक सेक्शन फ़िलोसॉफिकल आता था, अब तो दोनों सेक्शन ही फ़िलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल 1-2 साल पहले या शायद पिछले ही साल के सवाल आया था कि वन कैन नॉट बेथ इन द सेम रिवर ट्वाइस. अब ये बुद्धिज़्म का क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट है. क्षणिकवाद, जिसने फ़िलासफ़ी पढ़ा होगा वो ये इसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएगा. थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस ऑफ रियलिटी, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, क्षणभंगु की मोमेंटरी है दुनिया, मोमेंटरीनेस ऑफ रियलिटी, ठीक है. कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, कि जो पानी हम जिसमें बेद कर रहे हैं पहली बार पॉइंट ए में, फिर से जब ये पानी तो आगे चला जाएगा तो कोई दूसरा पानी इसकी जगह ले लेगा. तो बेसिकली उसने इसमें हम फिलॉसफी में जो आप पढ़ोगे तो ये समझा जाएगा कि किस तरह से जो एवरीथिंग इज़ मोमेंटरी एंड इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंट्स, वो इतनी फास्ट हो रहे हैं. जो लिमिटेड हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट है वो उस डिफरेंस को परसीव नहीं कर पाता है. सो लिमिटेड ह्यूमन इंटेलेक्ट कैन नॉट परसीव दिस डिफरेंस. दैट इज़ वाई वी सी द रिवर एज अ कंटिन्यूटी एंड नॉट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स, ठीक है. दूसरा आपका आ जाता है, ये हेगल की एक स्टेटमेंट है, द रियल इज़ रैशनल एंड द रैशनल इज़ रियल. तो ये एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है हेगल की, ठीक है. एपिस्टेमोलॉजी और इसकी मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता है. तो ये सारा आपका वेस्टर्न फिलॉसफी में कवर हो जाएगा. तो फिलॉसफी आपको सिर्फ वो 500 नंबर नहीं, ये एसए के 250 नंबर में भी आपको फिलॉसफी का ऑप्शन बहुत मददगार साबित होगा. इसके बाद आप एथिक्स की बात करें, एथिक्स में आपकी केस स्टडीज़ हैं, जो आपकी केस स्टडीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. थ्योरी क्वेश्चंस में भी जैसे थिंकर्स हैं आपको पढ़ने पड़ते हैं, थिंकर्स कोट करने पड़ते हैं आपको, तो वो आप फिलॉसफी में इतने अच्छे से पढ़ लोगे ना. जैसे कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, ये बहुत बार यूज़ हो जाता है. तो फिलॉसफी आपको टोटल 1000 मार्क्स में हेल्प करने वाली है.
तो आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद सब्जेक्ट साबित होगा। तो अगर आप इस तरह से आपको लगता है कि आप इसमें जस्टिस कर पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया फ़िलासफ़ी ऑप्शनल और फ़िलासफ़ी क्या है, थोड़ा सा वो भी एक आपको बैकग्राउंड दिया। उम्मीद है आपको इंटरेस्ट आया होगा। और इंटरव्यू में तो देखिए, इंटरव्यू में जो आप जाते हैं तो आपकी जो नॉलेज है, सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो आप एक फ़िलासफ़ी पढ़ने के बाद आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी रिफ़ाइन हो जाती है, आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हो, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से आंसर्स देते हो आप। तो आपका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, एक ठहराव सा आ जाएगा आपके अंदर। तो इस तरह से आप ना सिर्फ फ़िलासफ़ी ऑप्शनल, इसके अलावा देखिए 500 नंबर तो आपके हो गए फ़िलासफ़ी ऑप्शनल के, फिर आपका 250 नंबर हो गया ऐसे एथिक्स, प्लस 275 का ये आपका सेकेंडरी आपको मदद हो रही है। तो ये एक बहुत ही एक यूज़फुल ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो ये था आपके लिए ब्रीफ ओवरव्यू। अब अगर हम थोड़ा सा देखें फ़िलासफ़ी ऑप्शन की जो कैटेगराइजेशन है, तो आपको पता है 2 पेपर होते हैं। पहला आपका पेपर 1 है जो, और दूसरा पेपर 2, ठीक है। जो पेपर 1 है आपका, उसमें एक इंडियन फ़िलासफ़ी होती है और एक वेस्टर्न फ़िलासफ़ी होती है। और पेपर 2 में सोशो पॉलिटिकल, इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स का कंपोनेंट रहता है, जैसे जेंडर हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स रहता है। बाकी ये सारा जो 2/3 पोर्शन है, 3/4 पोर्शन है, 75%, ये आपका पूरा स्टैटिक है। ये फिलॉसफी ऑफ रिलीजन आ जाता है आपका, ठीक है। अगर हम उसका सेक्शनली डिवाइड करके इसका हम सिलेबस देखें थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा हल्का सा डिवाइड करके देखें, तो आपका पेपर 1 में वेस्टर्न फिलॉसफी से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पेपर 1 आपका वेस्टर्न फिलॉसफी से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले प्लाटो एंड एरिस्टोटल, इनको हम क्लासिकल फिलोसफर्स कहते हैं। किस तरह से इसमें प्लाटो ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ गुड, ठीक है, आइडिया ऑफ गुड की बात करता है, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी की बात करता है, ट्रांसेंडेंटल एंड देन परसेप्चुअल रियलिटी। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एलिगरी ऑफ द केव है, जो हम पढ़ेंगे आगे, एलिगरी ऑफ द केव, दिस इज व्हाट वी गोइंग टू स्टडी है, ओके। फिर कॉजेशन है, ये एरिस्टोटल का आइडिया कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी, कैसे वो बताता है कि हमारे अंदर एक्चुअलिटी होती है, पोटेंशियलिटी होती है, और उसको हम एक्चुअलाइज करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जो बेसिक डिबेट है माइंड बॉडी डुअलिज्म के ऊपर, ठीक है, और रैशनलिज्म आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें ये 3 वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, डिकार्ट, स्पिनोजा, लेबनिज। दे टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न, दे टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये रीज़न की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं नॉलेज फॉर्मेशन में, ठीक है। किस तरह से रीज़न इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव प्ले करता है। इसमें ये डिकार्ट आपका कार्टेशियन मेथड ऑफ और थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ डाउट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लेबनीज आ जाते हैं। लेबनीज आपका एट्रीब्यूट्स बात करते हैं कि माइंड और बॉडी 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो अल्टीमेट सब्सटेंस हैं। फिर डिटर्मिनिज्म और फ्रीडम की भी बात करते हैं इसमें। लेबनीज आ जाते हैं, ये पैरेललिज्म की बात करते हैं, पैरेललिज्म, और आपका मोनाड्स, प्लूरैलिटी ऑफ मोनाड्स, ये सारे टर्म्स हम पढ़ेंगे आगे, मोनाड्स क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट। ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे बनता है, नॉलेज इज फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपके ये 3 फिलोसफर्स हैं, लॉक, बर्किले, ह्यूम, यहाँ पे डिकार्ट, स्पिनोजा, लेबनीज। फिर आप कांट आ जाइए। कांट क्या करते हैं, इन दोनों को रिकनसाइल करते हैं। कांट रिकनसाइल्स द अपोजिंग claims of rationalism and empiricism, तो कांट के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉलेज ना दोनों के मिश्रण से बनती है। इसकी कांट की वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट है, ऑल नॉलेज बिगिंस विद रीजन, begins with experience, proceeds to understanding and ends with reason. Proceeds with experience means senses. All knowledge begins with senses, proceeds to understanding, senses से proceed होके understanding and then reason में end करती है। तो that is the idea of Kant. Kant gives this idea, ठीक है। कैसे वो फिर एंटीनोमीज की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं हेगल।
So Frederick Wilhelm Hegel, he talks about absolute idea. He talks about absolute idea. इसमें ये dialectical method को use करते हैं. Dialectical method, he uses dialectical method. Dialectical method में he uses the synthesis, then thesis. ऐसे he talks that पहले आपका thesis आया, फिर आपका एंटीथीसिस आया, इससे सिंथेसिस बना. ये सिंथेसिस नेक्स्ट थ्योरी के लिए थीसिस बन जाएगा. तो ये एवोल्यूशन, डायलेक्टिकल एवोल्यूशन कंटिन्यू रहती है. ठीक है. तो हेगल के बाद आपके ये आगे कुछ मूर, रसल, विटजेंस्टीन, ये फिलोसफर्स आ गए. ये कॉमन सेंस की बात करते हैं. इन्होंने आइडियलिज्म को कैसे रिफ्यूट किया. फिर विटजेंस्टीन, विटजेंस्टीन वन एंड अर्ली एंड लेट विटजेंस्टीन. अर्ली विटजेंस्टीन पिक्चर थ्योरी की बात करते हैं. ठीक है. जो बाद में आते हैं इसको रिफ्यूट करके मीनिंग एंड यूज थ्योरी की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. अब लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं, ये मेटाफिजिक्स को बोलते हैं कि absurd स्टेटमेंट्स हैं. जो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर absurd, दे आर यूजलेस. ठीक है. तो लेटर विटजेंस्टीन जब आता है, ही टॉक्स अबाउट मीनिंग एंड यूज. जैसे हमने बोला, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. ये कहता है लैंग्वेज कैन नेवर बी प्राइवेट, देयर इज नो प्राइवेट लैंग्वेज. फिर आपके नेक्स्ट फिलोसफर हैं फिनोमेनोलॉजी के हुसेल. ये एसेंसेस की बात करते हैं कि सारे, कि हमने जो रिडक्शनिज्म रिड्यूस करना है, कि जो फिलॉसफी में जो इसमें है ना कैप्टिवेशन एंड एक्सेप्टेडनेस, वो उस तरह का जो फिलॉसफी में जो चीज़ें घुस गई हैं, जो प्री कंसीव नोशंस या प्रेजुडिसेस, उनको हटा के उसको एकदम प्योर एसेंस में लेके आना है. फिर इसके बाद सबसे मेरा जो फेवरेट कंपोनेंट भी है, एग्जिस्टेंशलिज्म. इसके 3 जो मेजर फिलोसफर्स हैं, किरकेगार्ड, सार्त्रे एंड हाइडेगर. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. ये हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे डेली मुंडेन एग्जिस्टेंस को एक सेंसिबल बनाने में. किसने ये कहा कि लाइफ में ना सिचुएशंस आती रहेंगी, हमें उनसे डील कैसे करना है वो इसमें हम पढ़ेंगे. कि एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, कि कहता है कि मतलब किस तरह से किरकेगार्ड का एग्जांपल देता है वेटर का. वेटर कहता है कि वी आर ऑल लिविंग इन बैड फेथ. एक वेटर ये भूल जाता है कि वो एक इंसान है पहले. ही बिकम्स टू मैकेनिकल. He becomes too mechanical and forgets that he is also a human being first. So what the idea here is to understand the essence of human existence, the temporality, the idea, the and not just be guided by the our function. Our existence is more important. Then we come to Quine and Strawson. ये empiricism का critique करते हैं, एक theory of basic particulars in person. यहाँ पे Quine एक radical empiricist हैं, ये डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं वो चीज़ें. तो ये आपका वेस्टर्न फिलोसफी के कुछ कॉन्सेप्ट आ गए. अगर अभी हम नेक्स्ट जाएंगे चारवाक, इंडियन फिलोसफी. तो इंडियन फिलोसफी में सबसे पहले चारवाक है. आपको पता है ही परसेप्शन इज़ द ओनली रियलिटी. ही टॉक्स अबाउट परसेप्शन एज द ओनली रियलिटी. ठीक है. कि ये बाहु अनुम्यवाद की बात करते हैं, या देह आत्मवाद की बात करते हैं. देह आत्मवाद कि आत्मा और देह एक ही है. वो बॉडी के साथ, जब बॉडी खत्म होती है तो आत्मा भी खत्म हो जाती है. नो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी. ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये पूरा उस तरह का इनका कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट आपका आ गया जैनिज्म. जैनिज्म में थ्योरी, इट इज़ रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म. रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म. ठीक है. जैनिज्म का ये कॉन्सेप्ट है. इसकी थ्योरी है सप्तभंगी न्याय. ये हम पढ़ेंगे. इसका 7-fold जजमेंट है. फिर बॉन्डेज और लिबरेशन के बारे में क्या बात करता है. तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, स्यादवाद और अनेकांतवाद. अनेकांतवाद. ठीक है. ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, ये थ्योरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी. तो ये हम पढ़ेंगे किस तरह से. अगर एलिफेंट और ब्लाइंड मैन का एग्जांपल इसमें देते हैं कि एलिफेंट, जो ब्लाइंड मैन है, अगर वो एलिफेंट की पूँछ देखेगा तो उसकी पूँछ देखेगा तो बोलेगा एलिफेंट इज़ द टेल. उसकी ट्रंक देखेगा तो बोलेगा एलिफेंट इज़ द ट्रंक. सो human beings also, they are only able to see a part of the reality and not the entire reality. That is why it is called theory of manyness of reality. ठीक है. नेक्स्ट आपका बुद्धिज्म आ जाता है. उसमें प्रत्युत समुत्पत्ति. ठीक है. थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन. अस्मिन् सति इदम भवति. ठीक है. दिस बीइंग दैट अराइजेस. देन आपका क्षणिकवाद जो हमने पहले डिस्कस किया. नैरात्म्यवाद. फिर न्याय विशेष का फिलोसफी है, उसमें थ्योरी ऑफ कैटेगरीज की बात करता है. फिर हम लिबरेशन कैसे होती है, हम प्रमाण पढ़ेंगे. इन्फरेंस, टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन. ठीक है. कंपैरिजन, फोर्थ इज कंपैरिजन. ठीक है. देन उसके बाद आपकी सांख्य फिलोसफी आएगी. इसमें प्रकृति पुरुषा की बात करता है इसमें. ठीक है. किस तरह से
the world is the formation happens to the conjugation of प्रकृति एंड पुरुषा, जो एक गुणक्षोभ होता है इनका, गुणक्षोभ, ठीक है। किस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें कि जो कॉजेशन होता है वो किस तरह से होता है, उसमें डिफरेंट एवोल्यूट्स बनते हैं, तो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेटाफिजिक्स है। फिर इसके ऊपर ये आपका योगा फिलॉसफी बेस्ड ऑन द मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्या, तो ये सांख्या की मेटाफिजिक्स पे योग फिलॉसफी बेस्ड है, इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। फिर मीमांसा आ गई। फिर वेदांत फिलॉसफी में सबसे बड़ी एक आपकी स्टेटमेंट है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। इसमें कि ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, जगत इज अ मिथ्या, मीन्स इट्स एन इल्यूजन, वी आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट प्रॉपरली। एंड देन जीवो ब्रह्मेव, तो वी आर वन विद द ब्रह्म, ये शंकराचार्य बात करते हैं। फिर कैसे क्या कॉन्सेप्ट है रामानुजा का, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है माधवाचार्य का, वल्लभाचार्य का, तो वो सारा इसमें पढ़ेंगे। फिर आपके लास्ट आ जाते हैं इंडियन फिलॉसफी में श्री अरबिंदो। ही टॉक्स अबाउट इंटेग्रल योगा, कल्बिनेशन ऑफ ऑल योगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल योगा, ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है। तो बहुत ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने पढ़ लिया फिलॉसफी का पेपर 1। तो पेपर 2 में अगर हम देखें तो इसको हम ब्रीफली जल्दी से कर लेंगे। तो आइडियाज़ हैं आपके इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें सोवरेनिटी के ये थ्योरी हैं 4-5। फिर इंडिविजुअल एंड स्टेट, राइट्स, ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पढ़ लेंगे। एनार्किज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, ये आपका जीएस पेपर 1 में ओवरलैप हो रहा है, ये भी आपका जीएस पेपर 1 में ओवरलैप हो रहा है। ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट पेपर 2 में आपके जीएस में काम आएगा, ठीक है। डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी का कंपोनेंट है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फिटिसाइड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे टॉपिक्स हैं, आपने पढ़े रहे होंगे। हम पढ़ेंगे इनको कैसे, इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करना है, ठीक है। और आपका लास्ट जो कंपोनेंट है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ये भी काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है। इसमें नोशन ऑफ गॉड, गॉड के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, मैन और वर्ल्ड का रिलेशन क्या है, प्रूफ इसमें डिफरेंट फिलोसफर्स के, जैसे न्याय फिलॉसफी, वेदांत के, डिकार्ट ने क्या प्रूफ दिया, वो सारे प्रूफ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। फिर प्रॉब्लम ऑफ इविल, तो प्रॉब्लम ऑफ इविल क्या है, गॉड एग्जिस्ट, गॉड इज़ ऑल पावरफुल, देन वाई इविल एग्जिस्ट, ठीक है। कहते हैं कि अगर गॉड है और ही इज़ ऑल बेनोवलेंट एंड ही इज़ ऑल पावरफुल एज वेल, देन इविल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये इसकी फैलेसी है, इसको रिजॉल्व किया जाता है इसमें। फिर सोल के बारे में बात की है, इमोर्टैलिटी, लिबरेशन, डिफरेंट फिर रीजन, रेवलेशन, फेथ, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, मिस्टिसिज्म, इसमें बात करते हैं। फिर रिलीजन विदाउट गॉड, जैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है, ये रिलीजन तो हैं बट ये गॉड में बिलीव नहीं करते, तो देयर इज़ रिलीजन विदाउट गॉड। रिलीजन एंड मोरालिटी का क्या लिंक है, रिलीजियस प्लूरलिज्म, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म, आज के परिप्रेक्ष्य में रिलीजियस प्लूरलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेचर ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज, तो ये सारा आपका फिलॉसफी का सिलेबस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने आपको ब्रीफली ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि क्या ये सिलेबस है। दिस वाज अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फिलॉसफी, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप यू गॉट अ cursory idea about how to approach and what are the important philosophy क्या है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होंगी। बाकी हम डिटेल में we are going to cover in our succeeding lectures. That's all for today, friends. Thank you so much. जय हिंद।